Like you heard, we have a meeting at Gondia district. और जैसे आपने सुना कि हमारी एक सभा होने वाली है गोंदिया जिले में. January we were in Nagpur. जनवरी में हम नागपुर में थे. February we were in Ahmednagar. फरवरी में हम अहमदनगर में थे. And March we will be in Gondia district. और मार्च महीने में हम गोंदिया जिले में रहेंगे. So what I believe the Lord wants us to do is have 12 conferences in a year. और मैं जो विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस पूरे वर्ष में 12 सम्मेलन करें. So April also it's happening. तो अप्रैल महीने में भी हो रहा है. And May June also planning and all is going on. और मई और जून में भी जो उसकी योजनाएं हैं वो जारी है. So it's going to be great. तो बहुत अद्भुत होने वाला है. There's going to be serving team meeting after the service today. और सर्विंग टीम की मीटिंग होगी सभा के बाद आज. Maybe we'll take a break, half an hour break, and then all the serving team members meet. हम आधे घंटे का एक ब्रेक लेंगे और फिर हम जो भी सर्विंग टीम में हम सब मिलेंगे. And then Wednesday Bible study will be this week. Wednesday Bible study will have. और ये हफ्ते में हमारा बुधवार को हमारा बाइबल स्टडी होगा. Every morning we have global intercessory prayer. और हर सवेरे हमारी जो ग्लोबल इंटरसेसरी प्रेयर होती है. Morning 6 o'clock to 7 o'clock. सवेरे 6 से लेकर 7 तक. And we are praying for the nations of the world. और हम पूरे जगत के देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. And so there is a team that is doing it together. So if you want to be a part, you can join us in the morning and just do it for Father's agenda. Great prosperity will be released in your life. और हमारी पूरी एक टीम है जो इसके लिए प्रार्थना करती है. अगर आप चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं और पिता के प्रावधान के लिए, पिता के योजना के लिए आप काम करें. We almost completed 150 days. और हमने लगभग 150 दिन पूरे कर लिए हैं. Think about it. Praying for the nations of the world 150 days. और इसके बाद सोचिए कि पूरे जगत के देशों के लिए हम 150 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं. Anything you do for the Father's agenda, it will affect your own house. जो कुछ जो पिता के योजना के लिए, पिता के एजेंडा के लिए करेंगे वो आपके घर पर उसका प्रभाव आएगा. And with all the wars and everything that's going all around the world, it's getting very tough. और ये जो युद्ध चल रहे हैं पूरे विश्व भर में, ये सब चीजों को बहुत कठिन बना रहे हैं. With so many things that are happening. बहुत सारी चीजें हो रही है. With one nation attacking another nation, and this is happening and that is happening, and we have been praying. और एक देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध करता है और हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. And lot of disruptions are happening. और बहुत सारे भरमाना भी हो रहा है. And we have to pray. तो हमें प्रार्थना करना है. And so we already completed almost around 150 days, but we're going to pray more. We're going to pray more. हमने लगभग 150 दिन पूरे कर लिए हैं और हम और अधिक प्रार्थना करेंगे. Somebody says, why should I pray? तो कोई कहेगा मुझे क्यों प्रार्थना करना है? Do you love your dad? क्या आप अपने पिता से प्रेम करते हैं? Is his agenda important to you? क्या उसका एजेंडा आपके लिए महत्वपूर्ण है? Or is it only our bills? क्या सिर्फ हमारे बिल है? No, it's his agenda is important. नहीं है, उसका एजेंडा है जो महत्वपूर्ण है. Okay, so today I want to share about the Father's love part 2. आज हम बात करेंगे पिता का प्रेम भाग 2. That God Almighty is our Father and He loves you. कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमसे प्रेम करता है. 2 Corinthians 13:14. 2 कुरिन्थियों 13:14. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of Father God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे. He says, let it be with you. वो कहता है कि तुम सबके साथ होती रहे. इसको देखिए, let it be with you. Let it be with you. तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ होती रहे. किसी ने आपसे कहा कि ये बॉटल let it be with you wherever you go, let it be with you. किसी ने आपसे कहा कि जो बोतल आपके हाथ में ये आपके साथ होती रहे, आपके साथ बनी रहे. Like your phone, it's always with you. जैसे आपका फोन है वो हमेशा आपके साथ होता है. He says the love of the Father God, it must be with you. उसने कहा कि पिता परमेश्वर का प्रेम आपके साथ रहता रहे. That means wherever you go, it must be with you. इसका अर्थ है कि अब जहां कहीं भी आप जाए वो आपके साथ बना रहे. And so
it's going to be very powerful meeting in Gondia. और ये बहुत सामर्थ्यशाली मीटिंग होने वाली है गोंदिया It's going to में। be more powerful than Nagpur and Ahmednagar. वो नागपुर और अहमदनगर मिलाकर भी कई अधिक सामर्थ्यशाली होने वाली है, Because we are going from glory to glory. क्योंकि हम महिमा से महिमा में जा रहे So हैं। all the church members, you pray तो आप सब कलीसिया के जितने भी सदस्य आप प्रार्थना करिए, so that all the pastors, leaders, everyone who's coming there, they will never be the same. तो जो पासबान जो अगुवे आ रहे हैं वहां पे वो पहले जैसे ना रहे। Praise God. आमीन। Okay, Ephesians 2:4. इफिसियों 2:4 Next verse. अगला वचन। इसको देखिए, but God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। Now this verse tells us that God loves you with great love. तो ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने आपसे बड़े प्रेम से प्रेम किया है। It's so important for us to believe that I am loved by God. God loves me. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि मैं परमेश्वर से के द्वारा प्रेम किया गया हूँ। So the first point is तो मेरा पहला मुद्दा है is that you are God's beloved. Irrespective of the challenges, you are God's beloved. आपके जितने जीवन में चुनौतियां है उसके खिलाफ भी, उसके परवाह ना करते हुए भी आप परमेश्वर के प्रिय है। And we must believe it and accept it as truth that we are God's beloved. और हमें इसे विश्वास करना और इसे हमारे जीवन का सत्य बनाना है कि हम पिता के प्रिय है। Even though certain things may not work the way you want it to work, but you are God's beloved. Believe it and accept it as truth. शायद कुछ चीजें जो आपने सोची वैसी नहीं हुई, फिर भी आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किएगा, परमेश्वर के प्रिय है, इसे आप विश्वास करिए, सत्य बना लीजिए आपके जीवन का। Maybe there was some challenges in the company that you're working. This is the truth. शायद से आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पे कुछ चुनौतियां है, पर ये सत्य है, You are God's beloved. आप परमेश्वर के प्रिय है। And God has proved it by giving up Jesus Christ. और परमेश्वर ने इसका सबूत दिखाया है यीशु मसीह को देकर। Many people, they question the Father. बहुत सारे लोग पिता के ऊपर सवाल उठाते हैं, And it's not a good thing because nobody loves you more than your Father God. No one. There is no one in this universe who loves you more than your Father God. और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा आपसे कोई प्रेम नहीं करता। इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कोई नहीं करता। नहीं, ये आगे चलेगा. Go behind. No, go to. Yeah. You are God's beloved. आप परमेश्वर के प्रिय है। So what do we do? तो हम क्या करते हैं? We look at Jesus. हम यीशु को देखते हैं। Even though you're facing a challenge, भले ही आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, God still loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है And we got to believe it. और हमें उसका विश्वास करना है। Okay, so today my verse is Jude 1:21. तो आज का मेरा वचन है Yes. यहूदा 1:21। इसको देखिए. What a beautiful instruction by the Holy Spirit. कितना अच्छा निर्देशन है पवित्र आत्मा ने दिया हुआ। Keep yourself in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। How beautiful. कितना सुंदर है He ये। said, keep yourself. He's telling us to do something. He's saying, keep yourself in the love of God. वो हमें कुछ करने के लिए कह रहा है और वो कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अगर हमसे कहें कि सोचिए, आपसे कहा कि अपने आप को इस पोडियम पर ही रखो, यहां से हिलो मत, पोडियम पर रखो, पोडियम में अपने आप को रखो। He's saying, keep yourself in the love of God. Keep yourself there. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को वहां रखो। Keep yourself in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अभी God is giving us an instruction and God says, this is my command. Keep yourself in the love of God. अब परमेश्वर हमें एक निर्देशन दे रहा है और वो हमें ये आज्ञा दे रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। So obviously Satan's agenda is to bring you out of the love of God. तो ये शैतान की ये योजना है कि हमें उस परमेश्वर के प्रेम से बाहर निकालना है। क्योंकि परमेश्वर कहेगा फल को नहीं खाना है, तो शैतान क्या बोलेगा? उसी फल को खाना है, right? So when God says keep yourself in the love of God, then the enemy's only target is to bring you
out of the love of God. तो परमेश्वर कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, क्योंकि शत्रु की सिर्फ यही योजना है कि आपको परमेश्वर के प्रेम से बाहर लाना So है। wherever you are, तो जहां कहीं भी आप हो, office, ऑफिस में हो, house, घर में हो, colleagues, आपके दोस्तों के साथ हो, friends, आपके मित्रों के साथ your हो, home, आपके घर में हो, church, कलीसिया में हो, Monday to Friday, मंगलवार सोमवार से लेके शुक्रवार तक जहां कहीं भी Saturday, wherever you are, हो, जहां कहीं भी आप हो, he said, keep yourself in the love of God. Don't bring yourself out. वो कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, उसको बाहर मत लेकर आओ। You know, the word says, those who love me will keep my word. वचन कहता है, यीशु ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे वचन को करेंगे। Let's take a believer. एक विश्वासी को लेंगे। Every morning he shouts Jesus 5 times. हर सवेरे उठकर यीशु 5 बार चिल्लाता है। Another believer, और एक विश्वासी है, he keeps himself in the love of God. Who is a true believer? वो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखता है। कौन सच्चा विश्वासी है? The one who does what Jesus says. वो जो यीशु ने कहा वो करता है। When we do what Jesus says, we are true lovers. जब हम करते हैं जो यीशु मसीह ने हमसे कहा तो हम सच्चे प्रेमी बनते हैं। He said to us, keep yourself in the love of God. Keep yourself there. उसने हमसे कहा कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। So I was wondering how we do it. तो मैं सोच रहा था कि हम कैसे करते हैं। Because there will be lot of temptations in your life, challenges in your life, which will tempt you to come out of the love of God. क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आएंगे जो आपकी परीक्षा करेंगे कि आप परमेश्वर के प्रेम से बाहर निकले। The promotion that you were supposed to get, your colleague got it. जो पदोन्नति आपको मिलना चाहिए था आपके कलीग को मिल गया, And you know he doesn't deserve it. और आपको पता है कि वो उस बात के लायक नहीं। You know you only deserve it. आप जानते हैं कि आप ही सिर्फ उसके लायक हो। So what is your response? Keep yourself in the love of God. तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि आप परमेश्वर को अपने परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। Keep your, because the easiest and the cheapest way to walk in divine health is love. सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका ये है दिव्य स्वास्थ्य में रहने का कि आप परमेश्वर के प्रेम में चले। The easiest and the cheapest way to have a sleep without having any sleep issues is the love of God. सबसे आसान और सस्ता तरीका ये है कि आपकी नींद खराब ना हो, अच्छी हो, कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। Side effect भी नहीं है. उसके कुछ दुष्परिणाम भी नहीं है। Just keep yourself in the love of God. You will have the sweetest sleep of your life. सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखिए, आप अपने जीवन के सबसे सुंदर नींद का आप अनुभव करेंगे। Whatever assignments God has given you, जो भी कार्यभार परमेश्वर ने आपको दिए हैं, Satan will tempt you through different situations and people to bring you out of the love of God. But if you keep yourself in the love of God, you're going to be in good health. शैतान आपकी परीक्षा करेगा, आपको प्रलोभन लाएगा कि आप उसके द्वारा बाहर, आप परमेश्वर के प्रेम से बाहर आए, पर आपको उस प्रेम में बनाए रखना है। And the biggest example is Jesus Christ. और सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। Because someone called him Petu. किसी ने उसको पेटू बुलाया। अभी किसी को पेटू नहीं बोल सकते हैं, पेट पे मारेंगे वो। This is a very common dialogue, no? Pastor, अभी कुछ नया लाने पड़ेगा। Because they said Jesus is Petu. उन्होंने कहा यीशु आप पेटू हो। यीशु मसीह को बोला कि दुष्टात्माओं के सरदार से दुष्टात्माओं को निकालता है। These are very provoking statements. तो ये बहुत उकसाने वाली वाक्य रचनाएं हैं। But if Jesus tells us to do something, then probably when he hears such things, does he keep himself in the love of God? अगर यीशु हमें ये सब चीजें करने के लिए कह रहा है, पर जब वो खुद इन बातों को सुनता है तो क्या वो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखता है? Because then I want to see his life. क्योंकि मुझे उसका जीवन देखना है। Was he provoked? क्या उसे उकसाया गया? Was certain things said about him to provoke him? क्या कुछ जब चीजें कुछ उसे उकसाने के बारे में बताएगी तो क्या वो उकसा? And when it happened, did he keep himself in the love of God? और जब वो चीजें हुई तो क्या उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखा? Because he is our hero. कि वो हमारा हीरो है, He is our standard. वो हमारा उदाहरण है। We are not following one another, we are following him. And I want to see him whether he is doing this work. हम एक दूसरे का अनुसरण नहीं कर रहे, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो इन बातों को खुद करता है। So how do I keep myself in the love of God? तो मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में कैसे रखूं? Because he said, keep yourself in the love of God. क्योंकि उसने कहा कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखो। You know, you can jog, आप भाग सकते हैं,
You can eat organic food. आप अच्छा खाना खा सकते हैं, 6 बजे के पहले भी खा सकते हैं. If you don't walk in the love of God, you won't be healthy. अगर आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं चलेंगे आप स्वास्थ्य में नहीं रहेंगे. आप तेल कम कर सकते हैं, आप तेल कम खाइए, शक्कर बढ़ा सकते हैं, नमक कम कर सकते हैं, मसाला ऊंचे नीचे, प्रेम में नहीं चले, सब गया. Everything is gone. सब गया. Praise God. Because you see, you are made in the image and likeness of God. क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं. Unless we, me and you, unless we walk in love, other things it don't matter. जब तक आप और मैं प्रेम में नहीं चलेंगे तब तक दूसरी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. So I was questioning the Holy Spirit. How do I keep myself? ये एक कमरा है क्या कि मैं कमरे में रख दूं अपने आप को, कि एक जगह है कि वहां पे बंद कर दूं? How do I keep myself in the love of God? How do I do it? तो मैं पवित्र आत्मा से सवाल कर रहा था कि मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में कैसे बनाए रखूं. Because I love him and I will do what he क्योंकि says. मैं उससे प्रेम करता हूं और वो जो कहेगा मैं वो करूंगा. Because his word is my life. Whatever he says, I will do it. कि उसका वचन मेरा जीवन है, वो जो कुछ कहेगा मैं करूंगा. So the first point he gave me, तो पहला मतलब जो उसने दिया, the primary way of keeping yourself in the love of God is constantly beholding Jesus Christ. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने का सबसे प्राथमिक तरीका यह है कि आप लगातार यीशु को निहारते रहे. Whatever happened in the office, come home and look at Jesus. भले ऑफिस में कुछ भी क्यों ना हो जाए, घर आइए और यीशु को देखिए. No matter who says what against you, when you come back home, look to Jesus. भले किसी ने भी आपके बारे में कुछ भी क्यों ना बोला, घर पे आइए यीशु को देखिए. Maybe your friends don't like you. When you come back home, look to Jesus. शायद से आपके मित्रों आपको पसंद नहीं करते, आप घर आइए यीशु को निहारते So रहिए. the only way you can keep yourself in the love of God is by your decision to constantly behold Jesus Christ. तो आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखने का सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि आप निरंतर रूप से लगातार यीशु को निहारते रहे. There is no other way. कोई दूसरा तरीका है ही नहीं. There is no self discipline. It won't work. खुद को अनुशासित करने का तरीका वो काम में नहीं आएगा. Willpower won't work. आपकी स्वयं शक्ति आपके काम में नहीं आएगी. Self discipline, it won't work. खुद को अनुशासित करना आपके काम में नहीं The आएगा. only way you can keep yourself in the love of God, you make a decision that I am going to keep looking at Jesus every day. और एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रख सकते हैं, और वो है आप लगातार आप निर्णय लेते हैं कि मैं लगातार यीशु को निहारते रहूंगा. Whatever happened in office, कुछ भी हो जाए ऑफिस में, you come back home आप घर आते हैं and you look at Jesus. और आप यीशु को निहारते हैं. Whoever said what about you, when you come back home, you look at Jesus. किसी ने भी आपके बारे में कुछ भी क्यों ना बोला, आप घर आते हैं, आप यीशु को देखते हैं. You constantly beholding him. आप निरंतर रूप से उसको देखते हैं. Even when you are hurt, तब भी जब आपको ठोस पहुंची हो, you keep looking at him. आप उसको देखते हैं. Even when you are disappointed, तब भी जब आप निराश हो, you look at him. आप उसको देखते हो. Even when you feel like what should have happened, it didn't happen, you still look at him. भले आपको लगता हो कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, फिर भी आप उसको देखते हो. You had certain plans, आपके पास कुछ खुद की योजनाएं थी, it didn't work out. वो नहीं हुई. It's okay. When you come back home, look to Jesus. ठीक है, आप घर आइए और यीशु को निहारते रहिए. Jesus has a plan. यीशु के पास एक योजना है आपके We लिए. don't even know who is outside the hall. हम ये भी नहीं जानते कि बाहर कौन खड़ा है. He knows वो everything. सब कुछ जानता है. Just trust him. सिर्फ उस पर भरोसा रखिए. आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता. You don't know. You don't know. मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे पीछे क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता. So we have to trust him. हमें उस पर भरोसा रखना He है. knows everything. किधर क्या हो रहा है, आगे पीछे बाहर. He knows everything. Trust him. He has a plan. वो सब कुछ जानता है कि यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानता है और उसके पास एक योजना है. आप भरोसा रखिए. So how do I keep myself in the love of God? I must constantly a firm decision, because अपने आप नहीं होगा. You have to have a firm decision that Lord, no matter what happens, I'm going to keep my eyes on Jesus. तो मैं कैसे अपने आप को प्रेम में बनाए रखूंगा? मैं बहुत एक दृढ़ निर्णय लूंगा कि मैं लगातार, भले कुछ भी हो जाए, मैं लगातार यीशु को निहारते रहूंगा. John 13:34. यूहन्ना 13 का 34. इसको देखिए.
A new command I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. The entire commandment looks like the law of Moses until this statement comes, as I have loved you. ये पूरा जो आज्ञा है ये मूसा के कानून की तरह लगता है जब तक हम ये वाक्य ऐसा नहीं आती, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा. This entire commandment, the key is as I have loved you. ये पूरी आज्ञा में कुंजी ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा. So what do we do? तो हम क्या करते हैं? As you focus on how much Jesus loves you, जब तक आप ध्यान देंगे कि यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम रखता है, every time you come home जब कभी भी आप घर आते हैं and you say you're focused on Jesus and his love for you, आप ध्यान देते हैं कि यीशु मसीह के बारे में और उसके प्रेम के बारे में जो आपकी ओर है, his love for you, जो प्रेम आपसे करता है. every time you come back home, no matter who said what, disappointed, rejected, बुरा लगा, hurt, you come back home, you look to him, at least there is someone who loves me, thank you Lord. जब आप घर आते हैं, भले आपको गलत लगा आज, थोड़ा आपको इनकार किया किसी ने, कुछ गलत हुआ आपके साथ, आप घर आते हैं आप सोचते हैं कि कोई तो मुझसे प्रेम करता है. एक तो हमेशा है जो हमेशा आपसे प्रेम करते रहेगा. Praise. And always he will never be against you. वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं होगा. And so when everything is done, you come back home, you sit in his presence, you take his word, and then you're constantly beholding Jesus Christ. और आप घर आते हैं, आप थके हुए आप घर आते हैं और आप उसके वचन को लेकर बैठते हो, हमेशा आप उसको देखते रहते हैं. Because you can't keep yourself in the love of God, because the love of God is Jesus. So keeping yourself in the love of God is keeping yourself in Jesus. और आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यीशु है. जब आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखते हैं, आप अपने आप को यीशु में रख रहे हैं. Ephesians 2:4. इफिसियों 2:4. But God who is rich in mercy, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, he gives lot of chances. वो बहुत सारे हमें मौके देता है. How many times we don't read the Bible? कितने बार हमने बाइबल नहीं पढ़ा. विश्वास में आने के बाद how many times we make mistake? कितनी बार हमने गलतियां की. Even after coming in faith, विश्वास में आने के बाद भी so many times we have said wrong things from our mouth. कई बार हमने गलत चीजों को कहा अपने मुंह से. Even though we have been coming to church regularly, भले हम कलीसिया हर दिन क्यों ना, हर रविवार को क्यों ना आ रहे हो. when we are angry, what all we say. हम गुस्सा होने के बाद क्या कुछ नहीं कहते. We even give bad words. हम गाली भी दे देते हैं. But one thing about God, about Jesus, that he is rich in mercy, meaning he gives us a lot of chances. पर एक चीज परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में ये है कि वो दया का धनी है और हमें बहुत सारे मौकों को देता है. Even when Peter 3 times he denied Jesus, Jesus is so rich in mercy that he gave him one more chance. भले पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, फिर भी यीशु मसीह ने उसे और एक मौका दिया. So the Lord gives me lot of opportunities. तो परमेश्वर मुझे भी बहुत सारे अवसर देता है. Sometimes you're supposed to read the word and you didn't read it. शायद आपको वचन पढ़ना था, आपने नहीं पढ़ा. Every time you get up at 4 and pray, आज थोड़ा 6 बज गया. आप 4 बजे उठते प्रार्थना के लिए, आज 6 बज गया उठने में. And you are little late. और आप थोड़े देरी से उठे आज. And so he is so merciful. पर वो कितना दया का धनी है. Like he was merciful towards Peter. जब वैसे वो पतरस की ओर दयालु था. And he was merciful towards Zacchaeus. और वो जो अक्कियस के सामने भी वो बहुत दयालु था. He is rich in mercy. वो दया का धनी है. And so when you look at him and how he dealt with Peter, you see how merciful he is towards you. और जैसे आप देखते हो कितना दयालु है, जैसे उसने यीशु के पतरस के साथ उसने चीजों को किया, आप देखते हैं कि वो आपकी ओर कितना दयालु है. You know it is wrong. आप जानते हो गलत है, Still you did it. फिर भी आपने किया. Still you said those things. फिर भी आपने वो चीजें की. You know he doesn't like it. Still you did it. आप जानते हैं आपको वो चीजें पसंद है, आपने फिर भी की. But he is full of mercy.
पर वो दया का धनी है। He gives us opportunities. वो हमें अवसरों को देता He है, gives us lot of chances. वो हमें बहुत सारे मौकों को देता है। And so that's why we know how much He loves us, because He gives us so much opportunities. Even to me, so many और opportunities. वैसे ही हम जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हमें बहुत सारे मौकों को वो देता है। He gives us lot of because He is rich. He is not poor in mercy. He is rich in mercy. और हमें बहुत सारे अवसरों को देता है, क्योंकि वो दया का गरीब नहीं, वो दया का धनी है। There was a lady who was caught in adultery. एक स्त्री थी जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया। Actual act of adultery. जो व्यभिचार का जो कार्य था उसमें उसे पकड़ा गया। So everybody, the law of Moses wants to kill her. तो जो मूसा के कानून को मानते थे वो उसको मारने पर थे। Because all of us are like that lady, drowned in sin. कि हम सब उस स्त्री की तरह है, पाप में डूबे हुए। And so Jesus is so, because when you see Jesus talking to that lady, it's actually Jesus talking to us, because He is so merciful. और जब हम देखते हैं यीशु मसीह उस स्त्री से बात करता है, मानो वो हमसे बात करता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, Because He is rich in mercy. क्योंकि वो दया का धनी है। Next, Hebrews 12:6. इब्रानियों 12:6। For whom the Lord loveth, He chastens, He scourges every son whom He receives. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। One of the proofs how God loves is through discipline. तो एक सबूत या एक तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वो है हमें अनुशासित करना। He looked at Peter and he said, "Get behind me, Satan." उसने पतरस को देखा, उससे कहा कि पीछे हट जा शैतान। आप सोचिए, पहले पतरस को बोला कि पत्थर के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, पतरस को उसने कहा कि पहले तेरे पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। फिर बोला शैतान निकल यहाँ से। Then he said, "Satan, get out from here." और फिर उसने कहा शैतान यहाँ से दूर हट जा। If you have children and you don't discipline them, you don't love them. अगर आपके बच्चे हैं और आप उनको आप सही सुधारना या आप उनको आप अनुशासित नहीं करते तो आप उनसे प्रेम नहीं करते। So you see Jesus talking to Pharisees and telling them, "You are a hypocrite." और यीशु मसीह फरीसी से बात करता है और उनसे कहता है कि तुम पाखंडी हो। And you may think that he's very rude. He's not rude. It is actually his love towards the Pharisees who is trying to discipline them so that the life will become right. आपको लगता होगा कि शायद से यीशु बहुत कठोर है कि वो ऐसे बातें बोल रहे हैं। वो कठोर नहीं है, वो उसके प्रेम के द्वारा इन चीजों को बोला ताकि फरीसी इन बात को सुनकर अपने जीवन को अच्छा कर ले। If you have children, अगर आपके बच्चे हैं and if you don't discipline them, if you don't correct them, then you don't love them. अगर आप उनको सुधारते नहीं, आप उनको अनुशासित नहीं करते तो आप उनसे प्रेम भी नहीं करते। So one of the ways the Lord loves us is the Lord will discipline us. तो एक तरीका है जो इसके द्वारा परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, परमेश्वर हमें सुधारेगा। He will tell you what he doesn't like. It doesn't matter what you think about it. वो आपको बताएगा कि उसे क्या पसंद नहीं है और इससे फर्क नहीं पड़ता आपको पसंद है या नहीं। He will tell you what is wrong. वो आपको बताएगा कि गलत क्या है। He will show you where you are wrong. आपको दिखाएगा कि आप कहाँ गलत है। He will correct us. और वो हमें सुधारेगा। He will show us where we are wrong so that we make the correction because he loves us. और वो हमें दिखाए कि हम कहाँ गलत है ताकि हम उन सुधारणा को करें, और वो क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। He uses his word. वो अपने वचन को इस्तेमाल करता है। He uses his spirit. वो अपनी आत्मा का इस्तेमाल करता है। He uses God's anointed servants. वो कभी-कभी परमेश्वर के नियुक्त अभिषेक दासों का इस्तेमाल करता है। And he uses certain circumstances and he corrects people. और कुछ चुनौतियों या कुछ चीजें परिस्थितियों के द्वारा वो लोगों को सुधारता है। But notice when you look at him, पर याद रखें कि जब आप उसे देखते हैं and you see him saying that to Peter, "Get behind me, Satan." और जब हम देखते हैं कि वो पतरस को कहता है कि पीछे हट जा शैतान, You may think that he's so rude. आपको लगता होगा कि वो बहुत कठोर है यीशु। No, it's his love. Love disciplines. नहीं, ये उसका प्रेम है और प्रेम अनुशासित करता है। He was talking to one church in Revelation. वो प्रकाशित वाक्य में कलीसिया से बात कर रहा था। He said, "Because you're not cold, because you're not hot, I will throw you out of my mouth." उसने कहा क्योंकि तुम गर्म नहीं, तुम ठंडे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। Now when you hear statements like this, you feel like Jesus is so rude. आप जब ऐसी वाक्य रचना को सुनते हैं आपको लगता होगा कि यीशु कितना कठोर है। No discipline seems good at the time.
कभी कभी जो अनुशासन है वो कभी कभी अच्छा नहीं लगता, But you know, He has disciplined me so much. नहीं, उसने मुझे भी बहुत ज्यादा अनुशासित किया है And we must allow Him to discipline us. और हमें उसे अनुमति देनी होगी कि ताकि वो हमें अनुशासित करे, Because He really loves us and that's why He disciplines us. कि हमसे बहुत प्रेम करता है इसीलिए वो हमें कभी कभी ताड़नाएं भी देता है। One time the Lord told me that you are not putting much pressure on your confession. और कब एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू अपने अंगीकार पर दबाव नहीं डाल रहा, He corrected me. उसने मुझे सुधारा। Because if you love someone, especially if you love your children, if you really love them, then you have to correct them. जब आप अपने बच्चों से सच में प्रेम करते हैं तो आपको उन्हें सुधारना होगा। If you don't beat your children, अगर आप अपने बच्चों को मारते नहीं, you are creating a future for them that is going to be big trouble for you. आप उनके लिए ऐसे भविष्य को बना रहे हैं जो आपके ऊपर ही बड़ी मुसीबत होगी, Because the word says, कि वचन कहता है use the rod. कि तुम लाठी को इस्तेमाल करो। In today's bhasha, use your chappal. That is what it, translation, my translation. और आज की भाषा में मेरा अनुवाद है कि आप चप्पल का इस्तेमाल करें। No, you have to beat them. आपको उन्हें मारना होगा। अभी मारने के लिए नहीं मारना है. Praise God. If they are wrong, you beat them. अगर वो गलत है तो उन्हें मारिए, Otherwise, they're going to be a burden to you. नहीं तो वो आपके ऊपर बोझ बनेंगे। Somebody said, I don't do. मैं नहीं करता, कोई कहता है। Oh, that means you are above the word. नहीं तो इसका मतलब आप वचन के भी ऊपर And है, anybody who's above the word is going to fall on his face. और जो भी वचन के ऊपर अपने मुंह पे गिरेगा, Nobody is above the word. वचन के ऊपर कोई भी नहीं। When the word says, use the rod, use the rod. जब वचन ने कहा कि लाठी का इस्तेमाल करो तो लाठी का इस्तेमाल करो। हम अभी भी आए हैं, 30-40 साल हो गया, वचन अनंत काल से है. We can't be above the word. हम वचन के ऊपर नहीं रह सकते। For the Lord, whomever the Lord loves, He disciplines. प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, He disciplines them. उनको अनुशासित करता है। So if somebody truly loves you, they will discipline you. तो कोई आपसे सच में प्रेम करता है तो वो आपको अनुशासित करेंगे। It's a way of love. ये प्रेम करने का तरीका है। So when I look at Jesus तो जब मैं यीशु को देखता हूँ, and how He spoke to Peter, जैसे उसने पतरस से बात or किया, how He spoke to the 7 churches. या उसने जिस तरह 7 कलीसिया से बात किया, One church He said, you better repent, otherwise I'll remove your lampstand from its place. Tough words. एक कलीसिया से उसने कहा कि तुम पश्चाताप करो नहीं तो मैं उस दीवट को तुम्हारे बीच में से निकाल लूंगा। कितना कठोर बात है ये। कोई यीशु के बारे में ये पढ़ के सोचेगा, यार ये कौन सा यीशु है? Which Jesus is this? ये कौन सा यीशु है? No, it is our Jesus. ये हमारा यीशु है। Because those whom He loves, He disciplines. कि जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो कभी कभी ताड़ना भी देता है। And like I said, if you have children, जैसे मैंने कहा आपके बच्चे हैं, if you really love them, आप सच में उनसे प्रेम करते हैं, then we must discipline our children. और तब हमें उनको सुधारना है, हमें उन्हें अनुशासित करना है। We must discipline them. हमें उन्हें अनुशासित करना है। If you discipline them, good for you. अगर आप उन्हें अनुशासित करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। If you train them, good for you. अगर आप उन्हें सही बातों में सिखाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, Because the word is always right. क्योंकि वचन हमेशा सत्य है। And the second point, how do we keep ourselves in the love of God? दूसरा बात, कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। Brothers and sisters, offenses are many. भाई और बहनों, ठोकरें बहुत है। He said this, उसने ये कहा, that said this, उसने वो कहा, office this, ऑफिस में ये हुआ, house this, घर में ये हुआ, this that, ये हुआ, they this. ये उन्होंने ये किया। Offenses are, जब तक आप धरती में हैं, please remember, offenses are many. जब तक आप धरती में हैं, ठोकरें बहुत है। But being Christ-centered helps us escape the trap. परंतु मसीह केंद्रित रहना हमें उस जाल से बचाता है। As long as you're Christ-centered, offenses will not prevail over your life. जब तक आप मसीह केंद्रित है, वो ठोकरें आपके जीवन पर प्रबल नहीं कर पाएंगी। The most easiest person to get offended is a self-centered person. सबसे आसान व्यक्ति वो है जो ठोकर खा सकता है, वो व्यक्ति है जो स्वयं केंद्रित है। He is so self-centered, you can't correct him. वो इतना स्वयं केंद्रित है कि आप उन्हें सुधार नहीं सकते, You can't scold him. आप उन्हें चिल्ला नहीं सकते, Can't say anything to him, because when you are so self-centered, you will always be offended. You will think that everything that is happening for you. जो स्वयं केंद्रित व्यक्ति होता है वो हमेशा ये सोचता है कि ठोकरें आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सब चीजें उनके बारे में होती है। Because when you're self-centered, you feel like everybody is doing everything just against you. You are so important.
you feel like everyone is doing against me only. जब आप स्वयं केंद्रित होते हैं तो आपको लगता है कि हर एक व्यक्ति, सब लोग मेरे खिलाफ ही कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वार्थी है। And the truth may be nobody is even thinking about you. और सत्य ये हो सकता है कि शायद से आपके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। But because you are self-centered, you easily get offended. It's easy offense for you. क्योंकि आप स्वयं केंद्रित है, इसीलिए आप बहुत आसानी से ठोकर खा लेते So हैं। let me tell you, let me give you an encouragement. मैं आपको एक प्रोत्साहन दूंगा। Brothers and sisters, जब तक आप इस धरती में हैं, I've always said this from many years, जब तक आप इस धरती में हैं, there will be somebody somewhere saying things or doing things against you as long as you are on earth. मैंने आपसे बहुत बार कहा है भाई और बहनों, जब तक आप इस पृथ्वी पर है, आपके खिलाफ कोई ना कुछ तो कभी ना कभी कुछ करेगा या बोलेगा। Even when the government raises the taxes, आप बोले मेरे लिए किया है, भले जब सरकार ने कर बढ़ा दिया, आप कहेंगे मेरे लिए किया ये है। मेरे को सोच के किया। अरे आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। नहीं नहीं, मुझे देख के किया है ये। Who is thinking about you? Well, you are so full of yourself, you feel like even Prime Minister Modi does something is thinking about you. आप अपने आप से इतने भरे हुए हैं, आपको लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो भी आपको मन में रख के चीजें करते हैं। So offenses are many. तो जो ठोकरें बहुत है। But so how do I know that there are many offenses? मैं जानता हूँ ठोकरें बहुत सारी है। And so how do I come out of it? I become Christ centered. तो मैं उससे बाहर कैसे आता हूँ? मैं मसीह केंद्रित बन जाता हूँ। Because offense is how Satan works. He works through offense. क्योंकि शैतान जो है वो ठोकरों के द्वारा ही कार्य करता है। But when you're Christ centered, it will help you escape the trap. पर जब आप मसीह केंद्रित बनते हैं तो आप उस जाल से बच जाते हैं। Now remember, अब याद रखिए, the Bible says, keep yourself in the love of God. बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए तो रखिए। ऑफेंस के माध्यम से आपको वो परमेश्वर के प्रेम से बाहर लेकर आना चाहता है ताकि वो आपको बीमार कर सके। He wants to make you sick. वो आपको बीमार करना चाहता है। He wants to trouble your life. वो आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आना He चाहता है। wants to trouble your sleep. वो आपकी नींद में परेशानियों को लेकर आना So चाहता he है। has this so many different strategies to bring you out of the love of God and affect your health. तो उसके पास बहुत सारी रणनीतियां है कि आपको परमेश्वर के प्रेम से बाहर लाकर आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे। He's trying. वो कोशिश कर रहा है। इन गरजते सिंह के समान सुबह से रात किसको फाड़ खाए। Offenses are many. ठोकरें बहुत सारी है। So I can't stop it. I can't stop offenses. But if I become Christ-centered instead of self-centered, it helps us escape the trap. तो मैं ठोकरों को तो रोक नहीं सकता, पर मैं अगर मसीह केंद्रित बन जाता हूं तो मैं उस जाल से बच सकता हूं। We do a pastors meeting every month. हम हर महीने पासवानों की एक सभा लेते हैं। This is a private meeting. ये जरा व्यक्तिगत सभा है। Almost 80 to 100 pastors join us. 80 से 100 पासवान हमारे साथ जुड़ते हैं। And it's happening every month. और वो हर महीने होता है। नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते अगर हम स्वयं केंद्रित होते हैं। Amen. If I am self-centered, taking into account everything people say against me, they do against me, I would never make progress in ministry or in my life. Never. अगर मैं खुद स्वयं केंद्रित व्यक्ति होता तो मैं इन बातों को लेकर बैठ जाता कि किसने मेरे बारे में क्या कहा, किसने मेरे बारे में क्या किया, और उसके द्वारा मैं अपनी सेवकाई में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। My prosperity will stop. मेरी समृद्धि रुक जाएगी। I won't be able to sleep at night. मैं अच्छी तरह सो नहीं पाऊंगा रात को। All the opportunities that are coming to me today, it will all stop. जो भी अवसरें मेरी ओर आ रहे हैं आज वो सब रुक जाता। And what is the key? और कुंजी क्या है? The key is keep yourself in the love of God. कुंजी ये है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। No matter what, भले कुछ भी हो जाए, no matter who, भले कोई भी हो, keep yourself in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Offenses are many. ठोकरें तो बहुत है। I'm telling you, you take your office life. Offenses are many. अपने सिर्फ दफ्तर के जीवन को ले लीजिए, उसमें भी ठोकरें बहुत सारी है। What do I do?
मैं क्या करता हूँ? I keep myself in the love of God. मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखता हूँ। That's how opportunities will come to you. वैसे ही अवसर आपकी ओर आएंगे। That's how your divine health will come to you. वैसे ही आपका दिव्य स्वास्थ्य आपकी ओर आएगा। That's how that provision will come to you. वैसे ही वो प्रावधान आपकी ओर आएगा। Because he is trying very hard to get you out of the love of God. क्योंकि शैतान बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो आपको परमेश्वर के प्रेम से बाहर लेकर आए। अभी आप घर आते हैं और आप यीशु को देखते नहीं, आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया। आपका नजर बदल गया है। अभी you don't think about Jesus anymore. अभी आप यीशु के बारे में नहीं सोचते। Earlier you used to dream about Jesus. पहले आप यीशु के बारे में सपने देखते थे। यीशु चंगा कर रहा है। अभी आप सपने में देख रहे हैं, मार रहा उसको। अभी आप सपने में देख रहे हैं। And when you get up you feel good क्योंकि 2 लिया मैंने उसको। At least सपने में दिया। Praise God. But what happens is it's making you weak. पर वो आपको और कमजोर कर रहा है। It's affecting your health. ये आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। It's affecting your, and you know, it's affecting your future. और ये आपके भविष्य पर प्रभाव डाल रहा जो है। opportunities आपके मार्ग में आ रहे हैं वो रुक जाएंगे. They are stopped. जो अवसरें आपके मार्ग में आ रही है वो सब रुक जाएंगी। So offenses are many, but being Christ-centered helps us escape the तो trap. ठोकरें तो बहुत है परंतु मसीह केंद्रित रहने हमें उस जाल से बचाता है। Romans 8:35. रोमियो 8 का 35। Come, brother Abhishek. Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? देखिए, in Paul's life tribulation came. देखिए पौलुस के जीवन में क्लेश आए, Distress came. संकट आया, Persecution from उपद्रव। people, all kinds of persecution. हर तरह के लोगों से हर तरह का उपद्रव आया। He had to face famine, nakedness, peril and sword. उसे अकाल, नंगाई या जोखिम, तलवार सबका सामना करना पड़ा। You know, all these things can easily separate anyone from the love of God. ये चीजें आसानी से किसी को भी परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। Unless you make a firm decision that I will keep myself in the love of God. जब तक आप एक दृढ़ निर्णय नहीं ले लेते कि मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखूंगा। It depends on how firm your decision ये is. इस पे निर्भर करता है कि आपका निर्णय कितना दृढ़ है। Romans 8:38. रोमियो 8 का 28। For I am persuaded that neither death nor life, उसने कहा hardship सब छोटी बात है. Let me take you to a higher realm. Neither death, life, angels, principalities, powers, things present or things to come. उसने बोला कि जो ये उपद्रव है बहुत छोटी बात है, मैं आपको और ऊपर बातें बताता हूँ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई। Next verse. अगला वचन। Neither height, depth, nor any creature. Doesn't just talk about humans. He says any creature. This man has some revelation. Neither height nor depth nor any creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. ना गहराई ना कोई और सृष्टि, वो सिर्फ मनुष्य के बारे में नहीं बात कर रहा, वो कह रहा है कि परमेश्वर की कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु में हमसे है अलग कर सकेगी। उसने कहा मैंने अपने आप को प्रेम में रख दिया। And I believe it's a lesson for all of us. और मैं सोचता हूँ कि ये हमारे सबके लिए एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। Offenses are many. क्योंकि ठोकरें बहुत ज्यादा है, So many. बहुत सारी है। He says, I have kept myself. Famine tried to take me out, but I kept myself in it. उसने कहा बहुत सारी चीजों ने, अकाल ने मुझे बाहर लेकर आने की कोशिश की पर मैंने अपने आप को उसमें बनाए रखा। He said, people tried to stone me, लोगों ने मुझ पर पथराव किया but I kept myself in the love of God. पर मैंने अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखा। What an example we have in Paul. कितना अच्छा उदाहरण है हमारा पौलुस में। Okay, finally. आखिर में Personally affirm that you are God's beloved. व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करे, पुष्टि करे कि आप परमेश्वर के प्रिय है। आपके मुंह से आप कहें अपने बारे में कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। My Father loves me. मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। Even though there are tough situations, you personally affirm because it's true that you are God's beloved. भले चुनौतियां कठिन क्यों ना हो पर आप विश्वास करते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप परमेश्वर के प्रिय है। Mouth
affects destination. आपका मुंह आपकी मंजिल पर प्रभाव डालता है। If you want to stay in this location called the love of God, your mouth has a part to play. अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम इस जगह में बने रहे तो आपके मुंह को एक भाग पूरा करना है। God loves me. पिता मुझसे प्रेम करता है। God loves me. पिता मुझसे प्रेम करता है। We had so much strong revelation about love. We named our son Agape. हमारे पास परमेश्वर के प्रेम का बहुत इतना मजबूत प्रकाशन था कि हमने अपने बेटे का नाम भी अगापे रख दिया। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। My father loves me. मेरा पिता मुझसे प्रेम रखता है। So our health is getting better. तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। Our health is getting better. हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। Our prosperity has gone to a level, it's unprecedented. और हमारी समृद्धि ऐसे जगह पे गई है जो अभूतपूर्व है। 4-5 months ago, God said your traveling ministry will start again. 4-5 महीने पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हारी यात्रा की सेवकाई फिर शुरू होगी। We entered 2026, traveling ministry started. हमने 2026 में प्रवेश किया और वो यात्रा सेवकाई शुरू हो गई। There's no secret. कोई भी रहस्य नहीं है। The key is just do what God says. Keep yourself in the love of God. कुंजी ये है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखिए, वो करे जो परमेश्वर आपसे करता है। And one key is बोलो कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। बोलो। और एक कुंजी कि आप बोलिए कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। No matter what happened in office, affirm I'm God's beloved. भले आपके ऑफिस में कुछ भी क्यों ना जाए, अंगीकार करे कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। I'm God's beloved. परमेश्वर का प्रिय हूँ। मैं परमेश्वर का प्रिय। बोलिए मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। वापस बोले मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। Yes, I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। You know what? I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। They don't like you. वो आपको पसंद नहीं करते। Who cares? किसको फर्क पड़ता है? I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। क्या सबूत है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? Jesus. यीशु मसीह। Jesus is the proof God loves me. यीशु मसीह इस बात का सबूत है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। It's all going to work out. सब आपके लिए अच्छाई उत्पन्न Even करेगा। though it's tough today, भले आज थोड़ा कठिन है, you say God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। Jesus is the proof. यीशु मसीह सबूत है। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। Jesus is the proof. यीशु मसीह सबूत है। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। Jesus is the proof. और यीशु मसीह सबूत है। And He will work it for your good. और वो सब बातें आपकी भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। Look at 3 examples and we are almost done. 3 उदाहरण को देखेंगे और हम खत्म करने वाले हैं। Then Peter turning about, John 21:20, seeing the disciple whom Jesus loved. यूहन्ना 21:20 पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्रेम रखता था। Look at how John quotes about himself, how he mentions himself. देखिए कि यूहन्ना अपने आप को कैसे व्यक्त करता है। He is not saying Peter saw John. He is saying about himself, I am the disciple whom Jesus loves. यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि पतरस ने यूहन्ना को आते देखा। उसने अपने बारे में ये कहा कि मैं वो चेला हूं जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता है। Are you the only one he loves? क्या आप अकेले जिससे प्रेम रखता है? Doesn't he love everyone? क्या वो सबसे प्रेम नहीं रखता? तो John will say, I don't know about everyone, but मेरा मैं बोलता हूँ, he loves me. वो यूहन्ना ने कहा मुझे दूसरों का पता नहीं पर मेरे बारे में है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। Galatians 2:20. गलातिया 2:20। अभी पॉल को देखिए, अपोस्टल पॉल, I've been crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ lives in me. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me. मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मुझ में मसीह जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उसी विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। John says Jesus loves me. यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया। Paul says Jesus loves me. पौलुस ने कहा यीशु ने मुझसे प्रेम किया। Now finally the greatest example, और आखिर में सबसे अद्भुत और बड़ा उदाहरण Jesus Christ. पिता यीशु मसीह ने कहा John 5:20, for the Father loves the Son.
यूहन्ना 5:20, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। Personally affirm. व्यक्तिगत रूप से आप अंगीकार करें, Personally affirm. व्यक्तिगत रूप से अंगीकार करें। क्यों मैं करूं पुष्टिकरण? क्योंकि उसने कहा हमें और आपको अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखना है, और परमेश्वर के प्रेम में रखने का एक तरीका है पुष्टिकरण करिए कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं। आप बोलिए, जब कोई नहीं बोल रहा है, जब परिस्थिति विपरीत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कल क्या होगा, उन परिस्थितियों के बीच में विश्वास के साथ ये तीनों यूहन्ना की तरह, पौलुस की तरह और हमारे प्रभु यीशु की तरह आप पुष्टिकरण करिए कि पिता मुझसे प्रेम करता है। Everything is gonna be all right. सब चीजें ठीक हो जाएंगी, For the Father loves me. क्योंकि पिता मुझसे प्रेम रखता है। Please stand everyone. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's stand. You affirm that the Father loves you. आप पुष्टिकरण करिए कि पिता आपसे प्रेम करता है। Offenses are many, ठोकरें बहुत है, but if you're Christ-centered, you will escape that trap. परंतु यदि आप मसीह केंद्रित हैं तो आप उस जाल से बच जाएंगे। And whenever you go back home, और जब कभी आप घर वापस जाए, you constantly behold Jesus. आप लगातार यीशु को निहारते रहिए। Let's close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करें, Let's look at him for a moment. कुछ क्षण हम उसको देखें। Let's leave the people. लोगों को छोड़ दे, Let's look at our lover, अपने प्रेमी को देखें, the one who loves us so much. जो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम रखता है। He'll take care of it. वो उस बात की चिंता कर लेगा। क्या 40 साल उनको चलाया नहीं तो आपका और मेरा जीवन कौन सी बड़ी बात है? 40 years, didn't he take care of them? 40 साल क्या उसने उनकी देखभाल नहीं की? Can't he take care of you? क्या वो आपकी देखभाल नहीं कर सकता? Isn't he appointed heir of all things? क्या वो सारी बातों का वारिस नहीं? Isn't he the Alpha and Omega? क्या वो अल्फा और ओमेगा नहीं? Doesn't he have all the opportunities of your life? क्या उसके पास आपके जीवन के सारे अवसर नहीं? Just come home and look at him. सिर्फ घर आके उसको देखिए, That's all you need. सिर्फ आपको उसकी जरूरत है। Just come home and look at him. कृपया करके घर आइए और उसको देखिए। Just come home and look at him. सिर्फ घर आइए और उसको देखिए।